नमस्कार, हलचल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की तमाम हलचल पर। मोगा में अपने दोस्तों के साथ ढाबे पर खाना खाने गए युवक पर अज्ञात लोगों ने चलाई गोलियां, हुई मौत। यमुना नदी में आई बाढ़ के बीच पेड़ पर चढ़े युवक को 5 घंटे की मेहनत के बाद निकाला बाहर। बाबा सोडल मेले को लेकर श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट ने की तैयारी पूर्ण। भक्तों का तांता लगना हुआ शुरू, करवाया हवन यज्ञ। और अब हलचल विस्तार से। मोगा में बीती रात एक युवक अपने दोस्तों के साथ ढाबे पर खाना खाने गया। इस दौरान अज्ञात लोगों ने उस पर गोलियां चला दी और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी सिटी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि बीती रात करीब 11:30 बजे शशि नामक युवक अपने दोस्त रणजीत सिंह और बलबीर के साथ बलदेव ढाबे पर खाना खाने गया था। दूसरी ओर दोषी पक्ष भी यहां होटल में आया था। इस दौरान जब शशि होटल के बगल वाले बार में बियर लेने गया तो वहां अन्य आरोपी पक्ष के 5-6 लोग आपस में बहस कर रहे थे और उन्होंने भी उनसे बहस शुरू कर दी, क्योंकि वो भी नशे की हालत में थे। और जब शशि ने इसका थोड़ा विरोध किया तो उन्होंने पहले शशि को थप्पड़ मारे और फिर उनमें से एक ने पिस्तौल निकालकर शशि को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया और वहां इलाज के दौरान शशि की मौत हो गई। इस संबंध में प्राथमिक दर्ज कर ली गई है। दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोगा से हलचल के लिए निशी मनचंदा की रिपोर्ट। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਵਾਕ ਸੀਗੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਮਿਸੀ ਬਲਦੇਵ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਆਪਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਅਰ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹਿਸ ਬਸਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਬੀਅਰ ਲੈਣ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਲਫੇੜ ਮਾਰਤੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਵਾਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਫੇੜ ਮਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬਈ। ਉਹਦੇ ਮਾਰਤੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕੌਣ? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਆ। 7-8 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਜੀ। ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਮਾਰੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ? ਉਹ 27 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਘਰੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿਤੇ ਬੀਅਰ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 5-6 ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮਾੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਇਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਫੜ ਮਾਰਤਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ। ਤੇ ਤਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੁਲਾਉਣ ਗਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੀਏ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਯਕਦਮ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਪਛਾਣਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਨਸ਼ਕਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਗਏ? ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਲਵਾਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਬਲਦੇਵ ਢਾਬਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪੁੱਤਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਣਦੀਪ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵੀਰ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਬੀਅਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰੇ ਠੇਕਾ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5-6 ਜਣੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 103 BNS ਤਹਿਤ ਤੇ 25 27 54 59 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਾਥੀ है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यमुना नदी में आई बाढ़ के बीच लोहे के पुल यमुना बाजार के पास एक युवक की जान पर संकट उस वक्त आ गया जब वो तेज बहाव में बहकर पेड़ पर फंस गया। लोगों का कहना है कि वजीराबाद से तैरते हुए वो यहाँ तक आया था। अचानक पानी का बहाव तेज हुआ और उसकी ताकत जवाब दे गई। जान बचाने के लिए उसने पास ही एक पेड़ का सहारा लिया और उस पर चढ़ गया। तभी वहां मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों की सूझबूझ और NDRF की कड़ी मशक्कत से आखिरकार उसकी जान बच गई। पेड़ पर फंसे युवक को सुरक्षित निकालने में NDRF और दिल्ली पुलिस की टीम को 5 घंटे से अधिक समय लग गया। इस दौरान टीम को कई बार असफलताओं का सामना भी करना पड़ा। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। मेरा नाम इंस्पेक्टर परवान कादयान है और मैं 16 NDRF से हूँ। काफी मशक्कत के बाद में हमें जैसे सूचना मिली थी कि यहाँ पे विक्टिम ट्रैप हो रखा है। जैसे ही हम यहाँ पे आए, जमुना बाजार से वहाँ पे एक टीम लगी हुई थी हमारी, यहाँ पे एक सब टीम आई। तो यहाँ पे अदर जो दूसरे डिपार्टमेंट थे, पर्यटन विभाग है, दिल्ली पुलिस वाज आल्सो हियर, फायर है, दिल्ली फायर सर्विस, वो पहले से लगे हुए थे 2-2.5 घंटे से। तो हमने भी आके जो हमारी बेसिक सिखलाई है सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, बहुत ज्यादा म्यूचुअल सपोर्ट भी रहा एजेंसियों ने साथ में मिलकर, बट इस ऑपरेशन को जो गाइड किया वो हमने NDRF के द्वारा किया गया। जो टेक्निक, बेसिक टेक्निक रोप रेस्क्यू किया है वो NDRF की टेक्निक के द्वारा, इनकी सहायता से हमने सक्सेसफुली। पानी काफी बढ़ रहा है, ऐसी तो बहुत सारी आपके पास आ रही होगी रेस्क्यू की। बिल्कुल, पिछले 3 दिनों से हमारी 4 टीमें दिल्ली के अंदर लगी हुई हैं, जो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर और बहुत बेहतरीन ढंग से रेस्क्यू को ऑपरेट कर रही है। जिसको भी उतारा बिल्कुल ठीक है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल वो उसको एक्चुअली क्या है कि रेफर टू हॉस्पिटल कर दिया गया है। हमारा जो फर्स्ट एड देने के लिए एक नर्सिंग असिस्टेंट उनके साथ में है, जो बेसिक फर्स्ट एड उनको देके और देन फर्दर रेफर कर दिया। लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका श्री सिद्ध बाबा सोडल मेला श्रद्धा के साथ शुक्रवार को देर शाम से शुरू हुआ। मेले में आए श्रद्धालुओं ने बाबा जी के दरबार में नतमस्तक होकर अपने जीवन के मूल उद्देश्यों को कृतार्थ किया। परिवार के साथ बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं सहित भक्तों ने लाइनों में लगकर बाबा के समक्ष श्रद्धा से शीश भी नवाया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस मुलाजिम तैनात किए गए हैं। मेले की शुरुआत से पहले मंदिर प्रांगण में श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के सहयोग से बाबा जी के भक्तों की तरफ से हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें पूर्व सांसद सुशील रिंकू, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, मेयर विनीत धीर, आम पार्टी सेंट्रल हल्का इंचार्ज नितिन कोहली, आप नेता मंगल सिंह, आप नेता रोबिन सांपला, लोकसभा प्रभारी व पार्षद अश्विनी अग्रवाल बिल्ला, पार्षद दीपक शारदा, आप नेता आतिम प्रकाश सिंह बबलू, पार्षदपति भगवंत प्रभाकर, पूर्व पार्षदपति मनमोहन सिंह, आप नेता सुभाष शर्मा, आप नेता नवीन अग्रवाल, उद्योगपति संजीव कुमार, टिकू ढिंगरा, ट्रस्ट के कैशियर सुरेश चड्ढा, चड्ढा बिरादरी के प्रधान विपिन चड्ढा बब्बी, उप प्रधान JB चड्ढा, गुरविंदर सिंह लक्की, डॉक्टर सीताराम, राम प्रकाश विशिष्ट ने विशेष तौर पर उपस्थित होकर हवन यज्ञ में आहुतियां डाली। इस मौके पर ओम प्रकाश सप्पल, यशपाल ठाकुर, रवि मरवाहा, मोहिंदर प्रभाकर, प्रवेश शर्मा, अश्विनी शारदा, श्री राम जग्गी, केवल कृष्ण चोपड़ा, सुरेंद्र लब्बी भी मौजूद थे। चंद्र सरजूर के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट।
ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬਾੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਏਰੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜਿਆ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਸੀ ਦੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੇਲਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ शुरुआत की और मैं सारी ही संगत को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं देना और जिन्हें सारे ही शहर के गणमान्य व्यक्ति आया तो सारे हाजरियां बाबा जी इतने कबूल करन और साल दर साल क्योंकि जी संगत इतने हर साल भारी गिनती चाहती है उन्होंने मुरादा इतों अपन पूरियां करके लेके जाते हैं इस तरीके के नाल बाबा जी का आशीर्वाद सारी ही जी प्रबंधक कमेटी है और सारी संगत हमेशा बरकता रहे और साल दर साल इस तरीके के नाल ये सारे मेले लगते हैं तो फिर सारे ही शहर वासियों को सारे देशवासियों को अज के इस बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं जय बाबा जी जय बाबा जी बाबा सुंदर महाराज जी मेले दी आप सब संगतां ने बहुत बहुत मुबारक इस मेले के आगाज के उपर हवन यज्ञ के पहुंच के बाबा जी का आशीर्वाद लैन का सौभाग्य प्राप्त होया और जिन्नियां भी इतनी राजनीतिक समाजिक धार्मिक संस्थावां पहुंचियां ने सारा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और बाबा जी के मेले दियां साडी मन की ये कामना भी है कि जिन्हें भी थे बाबा जी के दरबार से हो सब दियां बाबा जी झोलियां भर के दे जय बाबा जी जय सिंह बाबा सोढल महाराज हवन यज्ञ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਮੰਦਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਟਰਸਟੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਹਵਨ ਯজ্ञ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਣਮਾਨਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ चेयरमैन मंगल सिंह जी जिले के पंजाब एग्रो स्पोर्ट के चेयरमैन ने बतौर मुख्य सचिव विधारे ने मैं उन्होंने अपने वालों अपने परिवार वालों और कमेटी वालों जी आया आखता हाँ उन्होंने नाल ही साडे शहर की शान साडे मेयर जी साडे विराजमान ने मैं उन्होंने भी अच्छी राजनीति करता हाँ देखो गरीब केंद्रों मंगल सिंह जी हो आप गए नहीं एक फोन किया दसा करता इन्हें अपना कीमती टाइम कटिया तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हाँ उन्होंने नाल ही श्री नितिन कोहली जी जिले के सेंट्रल हल्का इंचार्ज ने उन्होंने भी वर्कर पाया सिद्ध बाबा सोढल मंदिर तलाब कार सेवा कमेटी वालों जिन्हों ने बहुत ही सुचज्जियां सेवावां जिथे मंदिर प्रति निभाइयां उत्थे समाज प्रति भी निभाइयां क्योंकि ये कमेटी सदा समाज दे विच जिहड़ा लोड़मंद वर्ग है जिथे जिथे भी जरूरत पई है इन्होंने अगे हो के समाज का साथ दिता। तो साडे बहुत ही सत्कारयोग प्रधान जी यशपाल ठाकुर जी साडे चेयरमैन साहब ओम प्रकाश सप्पल जी रवि मरवाहा जी प्रभाकर साहब सारे साथी है जिहड़े पिछले लंबे समय तो यथाशक्ति अपनियां सेवावां इस स्थान दे लई निभा रहे हैं। सो अज भी हवन यज्ञ होया और जिथे सारी संगत नूं आशीर्वाद मिलिया उत्थे नाल ही नाल शहर के लिए और सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। सो मैं बहुत धन्नवादी हाँ सारी कार सेवा कमेटी का
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਆ ਉਹ शुरू हो गए हैं। उन्होंने सारी संगत ਨੂੰ बहुत बहुत बधाई, लख लख। लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका उत्तरी भारत का प्रसिद्ध बाबा सोडल मेला, जो कि इस बार 6 सितंबर दिन शनिवार को मनाया जा रहा है। श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के चेयरमैन शीतल विज की देखरेख में आरंभ होने वाले इस मेले को सफल बनाने के लिए ट्रस्ट ने सभी तैयारियां पूर्ण रूप से कर ली गई हैं। जानकारी देते हुए श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के चेयरमैन शीतल विज, महासचिव सुंदर चड्ढा, ट्रस्टी व मेला इंचार्ज तरसेम कपूर ने बताया कि मेले में पिछले वर्ष से अधिक इस बार ट्रस्टी की तरफ से मंदिर में की गई डेकोरेशंस की सजावट और लाइटिंग का नजारा देखने योग्य होगा, जिसका कार्य पूरा कर लिया गया है। श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के चेयरमैन शीतल विज ने बताया कि प्रशासन भी इस मेले को व्यवस्थित ढंग से संपूर्ण करने के लिए गत 2 माह से तैयारियों में जुटा हुआ है। इसके लिए वो प्रशासन को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस दौरान बाबा सोडल मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचे श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधन कमेटी के महासचिव राजेश विज, मानव विज, रितेश विज को मोहिंदर प्रभाकर भूषण कोहली ने विशेष रूप से सम्मानित किया। तो वहीं बाबा सोडल मेले से पहले ट्रस्ट की तरफ से लगाए गए लंगर की शुरुआत दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने अपने कर कमलों से की। इसी कड़ी में बाबा सोडल मेले में पुलिस प्रशासन की तरफ से भी मेले के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनाती को लेकर एवं मेले का जायजा लेने के लिए सीपी धनप्रीत कौर बाबा सोडल मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने मेले संबंधी डीसीपी नरेश डोगरा से जानकारी हासिल की और सभी पुलिस प्रशासन को चौकस रहकर पुख्ता प्रबंध करने को लेकर कड़े निर्देश दिए, ताकि कोई भी शरारती तत्व मेले में विघ्न न डाल सके। तो वहीं बाबा सोडल मेले से पहले आशीर्वाद लेने पहुंची सीपी धनप्रीत कौर, डीसीपी नरेश डोगरा, एसपी नॉर्थ आदित्य भाटिया को ट्रस्टी व मेला इंचार्ज तरसेम कपूर, चड्ढा बिरादरी के चेयरमैन श्यामलाल चड्ढा, प्रधान विपिन चड्ढा बब्बी, सुनील चड्ढा बिल्लू, मोहिंदर प्रभाकर व सौरभ शर्मा ने विशेष रूप से सम्मानित भी किया। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। बाबे सोडल दा द्वारा लगे प्यारा, बड़ा प्यारा, प्यारा बड़ा प्यारा, प्यारा बड़ा प्यारा। बाबे सोडल दा द्वारा लगे प्यारा, बड़ा प्यारा, प्यारा बड़ा प्यारा, प्यारा बड़ा प्यारा। बाबे सोडल दा द्वारा लगे प्यारा, बड़ा प्यारा। बाबे सोडल दा द्वारा लगे प्यारा, बड़ा प्यारा। बाबे सोडल दा द्वारा लगे प्यारा, बड़ा प्यारा। जिमें स्वर्ग दा नजारा मत्था टेके जग सारा। बाबे सोडल दा द्वारा लगे प्यारा, बड़ा प्यारा, प्यारा बड़ा प्यारा, प्यारा बड़ा प्यारा। बाबे सोडल दा द्वारा लगे प्यारा, बड़ा प्यारा, प्यारा बड़ा प्यारा, प्यारा बड़ा प्यारा। बागा परी ये जलंधर दी धरती प्यारी, धरती प्यारी, धरती प्यारी। लेके जन्म सी आया जिथे बाल अवतारी, बाल अवतारी, बाल अवतारी। बागा परी ये जलंधर दी धरती प्यारी, लेके जन्म सी आया जिथे बाल अवतारी। और जंगल सी पारा, किया बान सी बेचारा, कीता वचन उचारा, शहर बस गया सारा। बाबे सोडल दा द्वारा लगे प्यारा, बड़ा प्यारा, प्यारा बड़ा प्यारा, प्यारा बड़ा प्यारा। बाबे सोडल दा द्वारा लगे प्यारा, बड़ा प्यारा, प्यारा 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 बड़ा प्यारा।
बाबे सोडल दा द्वारा लगे प्यारा बड़ा प्यारा बाबे सोडल दा द्वारा लगे प्यारा बड़ा प्यारा सच होया बाबे कीतियां आकाशवाणियां सच कोमल जलंधरी ने कहानी। पंजाब में बने बाढ़ के हालातों के मद्देनजर बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के उद्देश्य से पंजाब का प्रसिद्ध समाचार पत्र दैनिक सवेरा टाइम्स भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आ गया है। इसी के तहत दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज की ओर से दैनिक सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन चलाया गया ताकि बाढ़ से पीड़ित लोगों की अधिक से अधिक मदद की जाए। इस बाढ़ राहत कोष में एचपी ऑर्थोकेयर अस्पताल के डॉक्टर सुनीत अग्रवाल ने 1,52,000 रुपए का चेक, कोहिनूर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एमडी निपुण जैन ने 1,01,000 रुपए का चेक, कपूर अस्पताल के एमडी जशनीत कपूर ने 1,51,000 रुपए का चेक, तो वहीं फेडरल इंटरप्राइजेस के राकेश गर्ग, रोहित गर्ग ने 1,01,000 रुपए, जेडी अलायंस के एमडी मनीष गुप्ता एवं गुप्ता परिवार की तरफ से 1,00,000 रुपए, बलेंटो वाटर मीटर के संस्थापक स्वर्गीय अविनेश शर्मा की याद में उनके सपुत्र कुशल शर्मा ने 1,00,000 रुपए का चेक, कोपस ग्रुप एवं जेटीएमए के प्रधान संजीव टिंकू, राजन ढींगरा एवं ढींगरा परिवार की तरफ से 51,000 रुपए का चेक दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज को भेंट किया। इस दौरान अजय अलंग लाली भी मौजूद रहे। शिरोमणि अकाली दल की विधायक और विक्रम सिंह मजीठिया की पत्नी बीबी गनीव कौर मजीठिया गुरु रामदास जी के दर पर नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। इस मौके पर गनीव कौर ने विक्रमजीत सिंह मजीठिया की चढ़ती कला, परिवार की तंदुरुस्ती और पंजाब में बने बाढ़ की स्थिति से राहत के लिए श्री अखंड पाठ साहिब का पाठ करवाया। इसी के साथ निशान साहिब चोले की सेवा और श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के दर पर चोला चढ़ाने की रस्म भी अदा की। इस मौके पर एसजीपीसी सदस्य सुरजीत सिंह भिंटेवड़ ने बताया कि श्री गुरु रामदास महाराज के समक्ष अरदास की गई है, पंजाब को इस प्रकोप से राहत मिले और लोग सुरक्षित रहें। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज बीबा गनीव जी आए सन गुरु रामदास जी के दर से दर्शन करने वास्ते। उन्होंने अखंड पाठ शुरू कराया इत्थे विक्रम सिंह मजीठिया जी की चढ़ती कला वास्ते, परिवार की तंदुरुस्ती वास्ते ते पंजाब च आ जिहड़ा करोपी बनी आ कुदरत दी, ਉਹਦੇ ਤੋਂ परमात्मा की अरदास की गुरु रामदास अगे बख्शिश करो, पंजाब के लोगों को राहत मिले और ये तो बाद जिहड़ा उस पंजाब के लोग सुख शांति वाले पासे जान, हाड़ां तो इन्हां दा बचाव होए, इस वास्ते अरदास भी कराई आ ते निशान साहब की चोले की सेवा भी कराई आ। गुरु हरगोबिंद पातशाह के दर ते तख्त साहब ते तो चोले बदलने की सेवा भी करवाई। और अज जो हाड़ां की स्थिति है वो बहुत माड़ी है, बहुत माड़ी, जिहदे नाल पंजाब के लोगों का जानी नुकसान, माली नुकसान और लोगों को आस नहीं आ भी असीं अगले वरियां च असीं जाके इत्थे की करना। और पंजाब त्रासदी वल नूं गया है। कल मैं वेख्या सेंटर का मिनिस्टर भी आए सन, एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वो भी वेख के गए आ ते अनाउंस कुछ नहीं करके गए। वो वेख के ते साडियां फसलों चों जिहड़ा कोई फसलों के रहंद खुंद लैके जिहड़ी थल्ले पई आ, गलिया झोना लैके उत्थे गए आ, उहदे तो बाद आंदे फैसला देंगे। तुहाडे थ्रू उन्होंने भी बेनती करांगे कि पंजाब सारे काम रोक के जे अफगानिस्तान नूं आपां ये वड्डियां सहायता दे सकते हैं, ये तुहाडा अपना सूबा है, ये देश नूं पालदा रहा है, ये देश दी अन्न पैदा करदा रहा है और अज भी करदा है। ते
ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ देना चाहिए। तख्त श्री केसगढ़ साहिब में बाबा जीवन सिंह जी के जन्म दिवस को समर्पित समागम का आयोजन किया गया। गौरतलब रहे कि बाबा जीवन सिंह व महान शूरवीर सिख थे, जिन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शीश श्रद्धा व सत्कार सहित आनंदपुर लाया था। इस पवित्र यादगार के अवसर पर निहंग सिंहों ने कीर्तन निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगत शामिल हुई। इस मौके पर शिरोमणि कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि पंजाब के पठानकोट और सुल्तानपुर लोधी तक के बड़े इलाके पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं बाढ़ की वजह से और हजारों एकड़ फसल नष्ट हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि एसजीपीसी के कर्मचारियों की ओर से 2 करोड़ रुपए का राहत फंड इकट्ठा किया गया है, जिसके तहत पहले 1 करोड़ रुपए के चेक जारी किए गए हैं। उसके बाद दूसरा चेक कुछ ही दिनों में जारी किया जाएगा। इसके अलावा कई दानी सज्जनों ने निजी तौर पर भी दान किया है, जिसमें देश विदेश से आई संगत ने भी योगदान किया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में बीमारियों से बचाव के लिए गुरु रामदास मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से एम्बुलेंस सेवा और दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज सब तो पहला रगड़ेटा गुरु का बेटा बाबा जीवन सिंह जी के जन्म दिहाड़े की सारी संगत नूं बहुत बहुत बधाई दिना। जिस बाबा जीवन सिंह जी ने साहब सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का सीस लैके आनंदपुर की धरती ते पहुंचे ते अज उन्हां दी पवित्र याद दे विच गुरुद्वारा साडे दीवान हाल तख्त श्री केसगढ़ साहब ते समागम भी चल रहे थे। अज नगर कीर्तन भी निहंग सिंघां वालों बाबा मेजर सिंह जी सोढी वालों लैके वो जिहड़े दिल्लियों तुरे आ उन्हें तकाला नूं पहुंचना। उस तो इलावा तुहाडे मैं रूर ये भी करना चाहना कि जिहड़ा साहब गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के शहीदी दिवस नूं महान नगर कीर्तन जिहड़ा पवित्र धोबड़ी साहब की धरती तो सतगुरां की पवित्र धरती तो शुरू होया सी, वो अज ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां विच ही हुंदा होया बड़ी सफलता पूर्वक वो अपनी मंजिल वाल वध रहा। तो मैं ये भी कामना करदा कि जिस तर्ज ते लोकां वालों उस पवित्र नगर कीर्तन दे विच बढ़ चढ़ के अपना योगदान पाया गया, इस गल का प्रतीक आ कि साहब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी जिन्हों ने अपना शीस बलिदान दूसरिਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, हिंदू धर्म ਲਈ ਕੀਤਾ ਤੇ बहुत ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 23/11/2025 ਨੂੰ श्री आनंदपुर की धरती ते पहुंचूगा। सो अज की जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस करन दा एक विशेष साडा वो तुहानूं इस करके सदा पत्र दिता गया कि पिछले समय दौरान आ जिन्ना बॉर्डर एरिया पठानकोट तो लैके अबोहर तक ते सुल्तानपुर लोधी की धरती ये बड़ी बुरी तरह फ्लड्स के नाल प्रभावित होया। प्रभावित नहीं होया, एक किस्म का कह लो भाई नष्ट ही हो गया। घरां दे विच 10-10 फुट पानी, फसलों के सारे तकरीबन मैं आप भी दौरा करके आया तो मैनू ये भी चिंता खा रही उन्होंने लोगों को भी कि झोने की फसल तो गई कि हाँ कणक भी बीजी नहीं जानी, क्योंकि थले झोने की पराली हो गई, उत्ते रेता पै गई ते उत्थे पता नहीं लगता भी समुंदर आ ते ओहदी डिमार्केशन उहनूं भी खेती पैणी सारा समा लगू। जंडियाला गुरु में डॉक्टर मंगल सिंह किशनपुरी की ओर से मजदूरों की विशेष तौर पर मदद की जा रही है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मजदूर वर्ग समाज वर्ग के रीढ़ की हड्डी है, जो अपनी मेहनत के साथ हर काम को संभव बनाते हैं। इस मुश्किल के समय में उन्हें सहायता पहुंचाना हमारा फर्ज है।
ताकि वो अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण कर सके। तो वहीं मदद मिलने पर मजदूरों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी और उन्होंने डॉक्टर मंगल सिंह किशनपुरी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर प्रिंसिपल अमरप्रीत कौर, बलविंदर सिंह गिल, प्रहलाद सिंह भी मौजूद रहे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। किशनपुरी फाउंडेशन वालों एक थोड़ा जिहा उपराला किया गया कि जो दा मीह पै रहा कि साडे लोकल जंडियाले दे जिहड़े मजदूर ने इन्हां नूं दिहाड़ी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता। इस करके इन्हां दा जिहड़ा बलविंदर सिंह नहीं आया सी ते इन्हां नूं मदद करनी है। अज फाउंडेशन ने अपने जो मैंबर सरपंच बलबीर होनी है सारे इकट्ठे होकर सहल शर्मा जी है, तो असीं इन्हां सारिਆਂ ਦਾ थोड़ा जिहड़ा मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हां दा जिहड़ा रोटी पानी जिहड़ा ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। जिन्हां दिन ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ प्रकोप है ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਹਤ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਘਰ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 4-5 ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਛੱਤਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਘਰ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸੰਕਟ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੀਡ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।